عادل صاحب، نظام الدین رایان صاحب، مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین اور صدر ممبئی جناب شاکر پٹنی صاحب، وہ دیگر قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر بھی سننے والی میری عزت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، انتخابات کا وقت ہے اور انتخابات میں آپ کے درمیان میں کئی سیاسی جماعتیں اور کئی امیدوار میدان میں آتے ہیں اور ہر جماعت اور ہر امیدوار آپ سے یہی کہتا ہے کہ آپ اس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اور مجلس اتحاد المسلمین بھی ان انتخابات میں پہلی مرتبہ اپنی قسمت کو آزما رہی ہے اور ممبئی بلدیہ میں کے انتخابات میں کئی امیدواروں کو میدان سے اتاری ہے اور اس کوشش کے ساتھ کہ اپنے امیدواروں کو بھی کامیابی حاصل ہو، اور مجھے اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے، بھروسہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور مجلس اتحاد المسلمین کو ایک اور تاریخ ساز کامیابی سے نوازے گا۔ خیر، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ ہے، اور جس کے جذبے میں دیانتداری ہو، اخلاص ہو، خلوص ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ان کو کامیابی اور کامرانی سے نوازے گا۔ اور مجلس اتحاد المسلمین صرف جذباتی تقاریر یا جذباتی نعروں کے ذریعے عوام کو اپنی طرف راغب نہیں کرتی، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین عملی میدان میں کام کرتی ہے اور اپنے کام کے ذریعے اپنی پہچان کو چھوڑتی ہے اور اپنے کام کے ذریعے عوام کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور اپنے کام کے ذریعے ایک نئی تاریخ بناتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین بے باکی کے ساتھ کام کرتی ہے اور اقتدار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر حق کو بیان کرتی ہے اور کبھی اظہار حق سے منہ نہیں موڑتی، حق کو ادا کرتی ہے، اور جب کبھی بھی آواز اٹھاتی ہے تو حق کی آواز کو بلند کرتی ہے، ناانصافی کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور اس ناانصافی کو انصاف میں بدلنے کی جدوجہد کرتی ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین ملت کی اور آپ کی اور ہر ایک کی ہر ان مسائل کی ترجمانی کرتی ہے جس مسائل کی وجہ سے ہم پریشان یا مصیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ اور آج اگر ہم اس ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کئی سیاسی جماعتیں آتی ہیں۔ ایک وہ جماعتیں آتی ہیں جو سیکولرزم کا مکھوٹا پہن کر سیکولرزم کے نام پر ووٹ تو حاصل کرتے ہیں لیکن سیکولرزم کی دھجیاں اڑاتی ہیں۔ تو دوسری طرف وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو اس ملک کو نفرت اور مذہب کے نام پر بانٹتی ہوئی اور اس ملک کو مذہب کے نام پر بانٹتی ہوئی اقتدار تک پہنچ رہی ہے۔ ایک طرف نام نہاد سیکولر جماعتیں ہیں تو دوسری طرف فرقہ پرست جماعتیں ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے مستقبل کو سنوارنا ہوگا اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا، یہی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین آئی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں ہے۔ مجلس ہر مسئلے پر اپنی آواز کو اٹھاتی رہی ہے
اور آگے بھی اٹھائے گی. لیکن میں آج اپنے اس خطاب کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم 70 برس کی آزادی کی اس تاریخ میں سب سے زیادہ ناانصافی کے اگر کوئی شکار ہوئے ہیں تو وہ آپ اور ہم ہیں. سب سے زیادہ 70 برس میں پچھڑے ہیں تو وہ آپ اور ہم ہیں. سب سے زیادہ تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے رہ گئے تو کون؟ آپ اور ہم رہے. 70 برس کے اس طویل سفر میں اگر کسی کی بستیاں جلی تو وہ ہماری جلی. 70 برس میں کسی کی عصمت لٹی سب سے زیادہ تو وہ ہماری لٹی. 70 برس میں اگر کسی کے ساتھ سب سے زیادہ ناانصافی ہوئی تو وہ ہمارے ساتھ ہوئی. 70 برس میں ہم کو ہمارے حق سے محروم کیا گیا. 70 برس کے سفر میں سب سے پچھڑے ہوئے، سب سے کمزور اور سب سے پیچھے اگر کوئی رہ گئے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان رہی. تو سوال یہ ہے کہ آخر ہم پچھڑے ہوئے کیوں رہے، پیچھے کیوں رہے، سب سے آخر کیوں رہے؟ کہ آج 70 برس کی اس تاریخ میں احساس محرومی نے ہمارے ذہن و دل کو اتنا غالب آ گیا، احساس محرومی، کہ ہم ہر حال میں جینے لگے اپنے حق کو طلب کرنے کی طاقت سے تک ہم محروم ہو گئے. کہ آج میں آپ کے سامنے صرف اپنے خطاب یا اپنے الفاظ کے جادو میں آپ کو بہانے کے لیے نہیں آیا ہوں، یا اپنے الفاظ کے سیلاب میں آپ کو بہانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں یہاں کھڑا ہوں تو آپ کی آواز بن کر آپ کی ناانصافی پر آواز اٹھانے کے لیے کھڑا ہوں، آپ کی حق کے لیے کھڑا ہوں، اور آپ جس چیز سے محروم ہوئے ہیں اس محرومی کو دور کرنے کے لیے کھڑا ہوں. میں یہاں پر کسی کے لیے کوئی نفرت کی بات کہنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، میں یہاں پر مذہب کی سیاست کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، لیکن میں یہاں پر مذہب کے نام پر جو ناانصافی ہوئی ہے، جو امتیاز برتا گیا ہے، جو حق سے محروم کیا گیا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں. اور میں یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ آج اگر ہم پچھڑے ہیں، پیچھے ہیں، کمزور ہیں زندگی کے ہر شعبے میں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں غیروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے یا غیروں پر الزام لگانے سے پہلے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، میری کیا کمزوری تھی، میری کیا کوتاہی تھی. آج اگر میں اپنے الفاظ کو سمیٹوں گا اور ایک ہی جملے میں بیان کروں گا تو ہماری پچھڑے پن کی، ہماری کمزوری کی، ہمارے حق سے محرومی کی، یا تعلیم میں پیچھے رہے، ہر محاذ میں پیچھے رہے، ان سب کی ایک جملے میں اگر میں کہوں گا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ ہمارے صفوں میں اتحاد نہیں رہا. ہم منتشر رہے، متحد نہیں رہے، خانوں میں بڑھ گئے، مسجد کے نام پہ بڑھ گئے تو مکتب کے نام پہ بڑھ گئے، عقائد کے نام پہ بڑھ گئے تو جماعتوں کے نام پر بڑھ گئے. یہ بڑھنے کا نتیجہ ہوا کہ ہماری اہمیت کم ہوئی، ہماری طاقت کم ہوئی. آج ہم کو بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ ہم اقلیت ہیں، ہم تعداد میں کم ہیں. بے شک ہم اقلیت ہیں، ہم تعداد میں کم ہیں، اس لیے اقلیت کہلاتے ہیں. لیکن یاد رکھو، تعداد معنی نہیں رکھتی، عزم معنی رکھتا ہے، ارادہ معنی رکھتا ہے، ہمت معنی رکھتا ہے، جوش معنی رکھتا ہے، جذبہ معنی رکھتا ہے، اخلاص معنی رکھتا ہے. آج کیا ہمارے پاس
जोश की कमी है, नहीं, हमारे पास जोश है, हमारे पास इखलास है, हमारे पास खुलूस है, हमारे पास कुछ करने और कराने का जज्बा भी है। लेकिन फिर क्या बात है, सब कुछ है लेकिन हमारे पास इत्तेहाद नहीं। और मैं आज आपके दरमियान में आया हूं तो सिर्फ इत्तेहाद का पैगाम लेकर आया हूं, और इस पैगाम के पीछे ये भी कहूंगा कि आज आपको, हमको टेक्नोलॉजी मिली है, टेक्नोलॉजी के जरिए हम हमारे शौक या हमारे पसंद या हमारी जानकारी जिसमें दिलचस्पी होती है उसके मालूमात को हासिल करते हैं। मैं यहां खड़े नौजवानों से कहूंगा कि इस जलसे के बाद जाकर देखना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पर जाकर देखो, पार्लियामेंट के 2014 के इंतखाबात में कौन सी पार्टी कितने वोट ली, जरा ये भी जाकर देखना। आपको देखने के बाद हैरत होगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने वजारत उज़्मा की कुर्सी को हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। आप जाकर अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि टोटल पोल्ड वोट्स में से 31% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। 31%। अगर ये 31% को तादाद में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को 17 करोड़ वोट मिले। कितने? 17 करोड़। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत से कि इस मुल्क में तुम्हारी क्या तादाद है, तुम्हारी कितनी आबादी है, तो बताओ। अगर ये 17 करोड़ वोट लेकर वजारत उज़्मा के कुर्सी पर पहुंचता है तो क्या हम इस मुल्क के मुक़द्दर के मालिक नहीं हो सकते? क्या हमारी तादाद है? कितनी तादाद है हमारी? कितनी जोर से? कितनी? 25 करोड़। वाह! वो 17 करोड़ लेकर वजीर आजम बनता है और हम इतने करोड़ रहने के बावजूद भी अपनी आवाज को ऐवानों में गुंजाने से नाकाम हो जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारा इंतशार है। हमारे सपों में इंतजार है, इत्तेहाद नहीं। इस वजह से 2014 के इंतखाबात में न सिर्फ नरेंद्र मोदी को इख्तियार मिला बल्कि 2014 पार्लियामेंट के इंतखाबात में उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी रियासत से एक भी मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट कामयाब नहीं हो सका। महाराष्ट्र जैसी रियासत से एक भी मुसलमान रुकने पार्लियामेंट मुंतखब नहीं हो सका। कर्नाटक जैसी रियासत से एक भी मुसलमान रुकने पार्लियामेंट मुंतखब नहीं हो सका। आंध्र प्रदेश से एक भी मुसलमान रुकने पार्लियामेंट मुंतखब नहीं हो सका। और इस इलाके से सिर्फ एक मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होता है और वह शहर हैदराबाद से मुंतखब होता है। आप गौर करिए, इसकी वजह क्या है? हमारे सपों का इंतशार है, हमारे सपों में इत्तेहाद नहीं है। इस वजह से आज न सिर्फ हम बेआवाज हो गए बल्कि हम अपने हक से महरूम होने लगे। कि आज इस बात पे गौर करिए कि अगर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक 2014 के इंतखाबात में मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने में नाकाम हो गया, कितनी बड़ी रियासत है उत्तर प्रदेश, क्या एक भी मुंतखब नहीं हो सकता?
इतनी बड़ी रियासत महाराष्ट्र, क्या एक भी मुसलमान नहीं आ सकता? अरे ये तो छोड़िए, आसाम के हालिया असेंबली इंतखाबात, मैं कहूंगा कि अफसोस की बात है कि अक़लियतें करीब 40% तक आसाम में है और मुसलमान आसाम में 34% है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी आसाम में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। तो हम गैरों को क्या कहें, हम गैरों को क्या कहें जब अपनों में ही इत्तेहाद नहीं। आज हमारा इंतशार हमारी सारी तकालीफ का जिम्मेदार है और आज हम इस बात को नहीं समझते। खुदारा इत्तेहाद को मजबूत करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। अगर मैं सही नहीं, मैं गलत हूं तो ठीक है, मुझे मुस्तरद करो, लेकिन मेरे मुस्तरद करने पर तुम अपने इत्तेहाद को मुस्तरद न करो। मुझे छोड़ो मगर इत्तेहाद को न छोड़ो, मैं यही कहूंगा। क्योंकि अहमियत शख्सियत की नहीं है, अहमियत मिल्लत के इत्तेहाद की है। शख्सियतें आएंगी जाएंगी, लेकिन जहां तो इत्तेहाद और कायम व दायम है। लेकिन आज ये इत्तेहाद खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे अपने वोट की अहमियत को समझो। मैंने बताया आपको कि वोट की अहमियत क्या है। अरे आज अगर मैं इस चौराहे पर खड़े रह के मुखातिब होता हूं तो जितना मजमा है मुझे सुनेगा और मेरे अल्फाज पर नारे लगाएगा। अगर मैं और जज्बाती तकरीर करूंगा तो और नारे लगेंगे, और चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो मेरे हलक से खून निकलेगा और नारे गूंजेंगी। और अगर जज्बाती तकरीर करूंगा तो याद रखो, पुलिस की बेचैन गोलियां तुम्हारे जज्बात को ठंडे कर देगी और तुम्हारे सरों और सीनों पे गोलियां दाग दी जाएगी अगर ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन अगर यही आवाज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गूंजेगी, असेंबलियों में गूंजेगी, बल्दियात में गूंजेगी। हजरात, ये खबर में आयत अफसोस के साथ तो अगर सुनाई जाती है, मोहम्मद हाफिज मोहम्मद आमिर के भाई जैनुल आबिदीन पाकिट वाले के साहबजादे मोहम्मद दानिश का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैयत उनकी रिहाइश का सारी बाजार से ठीक रात 10 बजे उठाई जाएगी। नमाज, जनाजा व तकफीर नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। हजरात, ये खबर निहायत ही अफसोस के साथ सुनाई जाती है। मोहम्मद हाफिज मोहम्मद आमिर के भाई जैनुल आबिदीन पाकिट वाले के साहबजादे मोहम्मद दानिश का इंतकाल हो गया। गुजरात में यही कह रहा था आपसे कि अगर हमारी आवाज, हमारे नुमाइंदे अगर ऐवानों में होंगे तो हमारी नाइंसाफी पर आवाज उठाएंगे, हमारी हक तलफी पे आवाज उठाएंगे और हमारे हक के लिए इख्तिदार से लड़ सकते हैं। अगर हमारे नुमाइंदे ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन लड़ेगा, कौन आवाज उठाएगा, कौन जिद्दोजहद करके आपके हक को हासिल करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसको हमको समझना होगा कि आज हमारी तादाद पार्लियामेंट हो, असेंबली हो या बल्दियात हो घट रही है, कम हो रही है। हमको इस बात पे गौर करना है कि अगर हम आज अपने नुमाइंदों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में अगर ऐवानों में नहीं भेजेंगे तो फिर कानून बनेगा हमारी तबाही और बर्बादी का, कानून बनेगा हमारे हक तलफी का, और फिर कोई नहीं रहेगा तो फिर आवाज कैसे उठेगी?
कोई नहीं रहेगा तो कैसे उस बनते हुए कानून को रोका जाएगा। इस बात पे हमको गौर और फिक्र करना होगा। अगर आज हमको अपनी खोई हुई अजमत को, वक़ार को अगर बहाल करना है या दोबारा हासिल करना है तो हमको अपनी सफों में इत्तेहाद को पैदा करना होगा। इत्तेहाद ताकत है और याद रखो इंतशार हमारी मौत है। अगर आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपके इत्तेहाद की आवाज लेकर आई है, इत्तेहाद का पैगाम लेकर आई है और आपके सफों में इत्तेहाद को पैदा करने का अज़्म व इरादा लेकर आई है। और इत्तेहाद अगर कायम होगा तो जरूर हम हमारे मसाइल के हल में कामयाब होंगे। आप कहेंगे कि कैसा? आज जो लोग कहते हैं कि मजलिस ने क्या किया, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन महाराष्ट्र को क्यों आई है, क्या करने आई है, ये सवाल होगा कई जहनों में। या हमारे मुखालिफीन भी बोलेंगे कि आप आए हैं तो क्या कर कर आए हैं, हमने क्या नहीं किया आंध्रा की असेंबली में, तेलंगाना की असेंबली में। अरे मजलिस ही थी जिसने आंध्रा की रियासत में सबसे पहले हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कमीशन बना तो वह आंध्र प्रदेश में बना, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में बनी, माइनॉरिटी फंड एलोकेशन हुआ तो सबसे पहले आंध्रा में हुआ। अरे मजलिस ने काम किया है और काम के जरिए मुसलसल 55 बरस से आंध्रा की असेंबली और फिर अब तेलंगाना की असेंबली में नुमाइंदगी करती आई है। कभी हमारा इस रुकने असेंबली 1 हुआ करता था, उसके बाद 3 हुए, फिर 5 हुए और आज 7 एमएलए तेलंगाना असेंबली में है। और हमने वहां पे क्या हासिल किया? आज आंध्र प्रदेश टूटा, तेलंगाना बना, लेकिन मजलिस की वजह से आंध्र प्रदेश में भी और तेलंगाना में भी मुसलमानों को तालीम और रोजगार में रिजर्वेशन दिए जाते हैं। आप बोलेंगे कि वहां कैसा रिजर्वेशन मिला? वहां पर भी कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस की हुकूमत में हमने रिजर्वेशन को हासिल किया। तो सवाल यह है कि कांग्रेस एनसीपी यहां भी थी तो फिर यहां रिजर्वेशन क्यों नहीं दी? राजस्थान में भी थी, वहां क्यों नहीं दी? आसाम में भी थी, वहां क्यों नहीं दी? जिस वक्त हमने रिजर्वेशन लिया दिल्ली में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। तो सवाल यह है कि इन रियासतों में रिजर्वेशन नहीं मिला, आंध्र प्रदेश में मिला। तो क्यों मिला? कि महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में हो, राजस्थान में हो या आसाम में हो, जहां कांग्रेस इख्तियार में थी वहां रिजर्वेशन नहीं मिला। तो इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहां पर आंध्र प्रदेश जैसी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नहीं थी, इसलिए नहीं मिला। और हम हासिल करें लड़कर, और आज महाराष्ट्र में जाते जाते कांग्रेस ने 2014 में रिजर्वेशन का ऐलान किया, रिजर्वेशन न मिला न टिका। आप बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? अरे अगर ताकत होती, इत्तेहाद होता, अपनी जमात होती, अपनी क़यादत होती तो शायद यह कांग्रेस झुकने पे मजबूर होती। कांग्रेस के पास जो भी हमारे नुमाइंदे बनकर गए या एनसीपी के पास हमारे नुमाइंदे बनकर गए, ये हमारे नुमाइंदे कम थे, कांग्रेस और एनसीपी के दरबारों के गुलाम ज्यादा थे। अपने जात के लिए और अपने जाती मफाद के खातिर इन्होंने मिल्लत का सौदा किया, बेच दिया कौम को। अगर डट जाते, खड़े रह जाते और बोलते कि कुछ नहीं, रिजर्वेशन देना नहीं तो हम
हुकूमतों को छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे, तो क्या रिजर्वेशन नहीं मिलता? अरे आप आज महाराष्ट्र की सूरत हाल को देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि क्या मिला महाराष्ट्र के अक़लियतों को, क्या तहफ़्फ़ुज़ात मिले, क्या रोजगार मिला, क्या बैंक से कर्ज़ेजात मिले, क्या पढ़ने के लिए मदारिस मिले, क्या बीमारों के इलाज के लिए दवाखाने मिले, क्या बस्तियों की तरक्की के लिए कुछ पैकेज मिला? कुछ नहीं मिला। 280 करोड़ का बजट था 2014 में, सिर्फ 80 करोड़ रुपया खर्च हुआ। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप भी नहीं मिली बच्चों को, बैंक से कर्ज नहीं मिला। आज क्या हाल है? महाराष्ट्र से अगर 100 ग्रेजुएट निकलते हैं तो उन 100 ग्रेजुएट में सिर्फ 2.4%, 100 ग्रेजुएट में 2.4 मुस्लिम ग्रेजुएट होते हैं। क्या ये अफसोसनाक फिगर नहीं है? उस 100 में लड़कियां कितनी? 1.4। अगर 100 लड़कियां ग्रेजुएट बनती हैं तो उस 100 में सिर्फ एक मुस्लिम लड़की ग्रेजुएट बनती है। क्या यही है एनसीपी, कांग्रेस और समाजवादी ने दिया? क्या यही है? जेलों में आबादी कितनी? 1 करोड़ 30 लाख के करीब 13% हमारी आबादी। जेलों में कितने? करीब 27%। अंडर ट्रायल्स जेल में जो है, अगर 100 कैदी जेल में है तो 27 कैदी महाराष्ट्र की जेल में मुसलमान हैं। क्या ये मिला? क्या यही दिया कांग्रेस एनसीपी वालों ने? महमूदुर रहमान कमेटी ने कहा, सच्चर कमेटी ने कहा, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला? कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, कितने आईएफएस हैं, कितने आईआरएस हैं? 1% भी, लेस देन 1% सिविल सर्विसेज में मुसलमान हैं। तो बताइए, क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ हुआ? ना तालीम, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम, निजामुद्दीन रायन साहब जानते हो, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम, जितना भी फंड मरकजी हुकूमत से आता है उसका 15% माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज में खर्चना लाजिम व जरूरी है। चीफ सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में स्टेट लेवल कमेटी बनानी थी, क्या बनाए? डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई, क्या सिटी लेवल कमेटी बनाई, क्या सर्व शिक्षा अभियान में खर्च किया, क्या म्युनिसिपल डेवलपमेंट में खर्च किया, क्या स्कॉलरशिप में किया? अरे कौन है पूछने वाला? कोई नहीं है। आप बताइए कि आज हम इन सवालात को आपके सामने लाते हैं तो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि आपने क्या किया। अरे यहां 1 करोड़ 30 लाख की आबादी के लिए 280 का बजट दिया, सिर्फ 80 रिलीज हुए। और मैं जिस रियासत से आया हूं 50 लाख से भी कम मुसलमान हैं, लेकिन मजलिस की ताकत है कि वहां का बजट 1200 करोड़ का मुसलमानों के लिए है। ये हमने किया। सिर्फ ये नहीं, बजट से हटकर अब 200 रेजिडेंशियल स्कूल्स, मुस्लिम रेजिडेंशियल स्कूल्स हमारी रियासत में आ रहे हैं और सालाना 1500 करोड़ रुपया खर्च होगा। केजी से लेकर 10th क्लास तक बच्चा या बच्ची वहां दाखिला लेंगे और दाखिला लेने के बाद रहना, खाना,
कपड़े, उनके कॉस्मेटिक चार्जेस, किताबें, सब चीज हुकूमत देगी और बच्चे वहां पे तालीम हासिल करेंगे। क्या ऐसा कुछ यहां पे कांग्रेस एनसीपी वालों ने दिया? अगर इसको भी मिला ले तो करीब 3000 करोड़ का बजट होता है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा बजट में हिंदुस्तान देख लेगा कि हिंदुस्तान के बजट में 4000 चिल्लर करोड़ है सारे हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज के लिए। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना में माइनॉरिटी के बजट को 4000 से जायद करने में कामयाब हो जाएगी। और मजलिस क्या करी, जो जानना चाहते हैं उनसे कहूंगा कि एससी एसटीज को खास मराहत हैं, सहूलतें, बेनिफिट्स हैं। एससी एसटी को किताबें दिए जाती हैं, बस पास दिए जाता है, पॉकेट मनी दिया जाता है, हर एक चीज दी जाती है। जो सहूलतें तालीम और रोजगार में एससी एसटीज को दिए जाते हैं, 15 दिन पहले यहां आने से पहले मैं कहूंगा कि मेरे जिंदगी का एक और बड़ा कारनामा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि मुस्लिम्स विल बी ट्रीटेड ऑन पार विद एससीज एंड एसटीज इन फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या हिंदुस्तान में कहीं पर है? फिर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, अकबर साहब अब तो खुश है। मैंने कहा नहीं सीएम साहब, नीट का इम्तिहान हो रहा है और उर्दू पैदा लखनऊ में हुई लेकिन फली फूली और फैली तो हैदराबाद में। आज नीट का इम्तिहान मराठी में है, गुजराती में है, तेलुगु में है, कन्नड़ी में है, हर जबान में है, उर्दू में नहीं है। चलो इस असेंबली से हम रेजोल्यूशन मंजूर करवाते हैं और आप प्राइम मिनिस्टर को ले जाकर देना और कहना कि नीट का इम्तिहान उर्दू में भी मुनक्किद होना चाहिए, तो हमारे असेंबली में वो भी पास हो, वो भी पास कराए। हमारे बच्चे एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, आर्किटेक्चर, एलएलबी, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, जो भी कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे और उनको दाखिला मिल जाता है। फीस कोई कॉलेज उनसे मुतालबा नहीं करती, इसलिए कि पूरी की पूरी फीस रियासती हुकूमत देती है। हमारे पढ़ते हुए बच्चों की जो सालाना 480 करोड़ रुपए की फीस एमबीबीएस, बी, एमबीए, एमसीए, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, एलएलबी, हर कोर्स के लिए हुकूमत देती है। क्या ऐसा कुछ कांग्रेस एनसीपी वालों ने किया? ग्रेजुएशन के बाद यहां पर भी नौजवान खड़े होंगे, ग्रेजुएशन कर रहा है, अब उम्मीदवार बनाए। उम्मीदवार बनने से पहले जरूर ये इस नौजवान के दिल में ये ख्वाहिश थी होगी कि ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स अमेरिका या लंदन या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाकर करूं। ट्रांसपोर्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, क्या आपकी दिल की ख्वाहिश थी कि बाहर जाके मास्टर्स करें? कई नौजवानों की ख्वाहिश है कि अमेरिका, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाए। मैं आपको बताऊं उन नौजवानों को कि मेरी जिंदगी की एक और बड़ी कामयाबी, मैंने असेंबली में खड़े रहकर कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे बच्चे भी बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं। आप एससी एसटीज के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, पैसे देते हैं, हमारे बच्चों को क्यों नहीं? तो चीफ मिनिस्टर ने उठ के कहा कि सही अकबर साहब आप जो कह रहे हैं, और जो भी बच्चा मास्टर्स करने के लिए अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहीं पर भी जाना चाहता है तो प्लेन का टिकट, हॉस्टल की फीस और 20 लाख रुपया हमारी हुकूमत देती है। सालाना 400 बच्चे जा रहे हैं।
क्या ऐसा कुछ हुआ यहां पे? क्या कोई गांधी ने दिया? कोई पवार ने ऐसा किया? अरे आपको सुन के हैरत होगी। और एक बात कहूं, हमारे पास एक दीनी दर्जगाह यूनिवर्सिटी है, नाम सुना होगा, जामे निजामिया। जामे निजामिया में जो भी दीनी कोर्स करेगा उनके कोर्सेस को मैट्रिक की इक्विवेलेंसी हम दिलाए, इंटरमीडिएट की इक्विवेलेंसी दिलाए, ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंसी दिलाए। वहां से अगर कोई फारिग होता है वहां पे दीनी मदरसे से तो उसको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है, और वो सर्टिफिकेट के बाद अगर कोई बच्चा जामे अजहर, मक्का यूनिवर्सिटी, मदीना यूनिवर्सिटी में भी मजहबी आलिम फाजिल का कोर्स करना चाहता है तो हमारी हुकूमत उसको भी 20 लाख रुपया दे के वहां भी जाती है। क्या ऐसा कुछ कांग्रेस एनसीपी ने किया? गरीब बच्ची की शादी का रोका, राशन कार्ड और एमएलए की दस्तखत हो गई तो उस गरीब बच्ची की शादी के लिए 51,000 रुपीज हुकूमत देती है गरीब बच्ची की शादी के लिए। क्या ऐसा कुछ हो रहा है? क्या ऐसा कुछ मिला? अरे आप बताइए, आज लोग कहते हैं कि इस मुल्क में फिरका परस्ती उरूज पर है, मजलिस क्या करी? अरे हैदराबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मरकज है, आईटी हब जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो गच्चीबौली और हाईटेक सिटी के नाम से है। जाकर देखिए, बड़े बड़े हैं। हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर है सॉफ्टवेयर में तीसरे नंबर पर हैदराबाद है। उस हैदराबाद में औकाफ की एक जमीन थी, वहां पे लैंड ग्रैबर्स कब्जा करे थे। मैं मुकदमा लड़ा और वहां अपने लोगों को ले जाकर उस जमीन को लैंड ग्रैबर से हासिल किया, बैठे रहा। और फिर 15 दिन पहले अपनी असेंबली में मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब, ये दुनिया इस्लाम को सिर्फ जिहाद का मजहब समझती है, नफरत का मजहब समझती है और समझती है कि इस्लाम लड़ाई झगड़े का मजहब है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम भाईचारगी का मजहब है। तो उन्होंने कहा, अकबर साहब आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा कि हम वहां पर एक इस्लामिक सेंटर बनाना चाहते हैं और दुनिया के सामने इस्लाम की सही तस्वीर को पेश करना चाहते हैं। तो कहा कि बनाइए। मैं नक्शा बनाया, वहां पे एक स्कूल है, दीनी मदरसा है, कन्वेंशन सेंटर है, ऑडिटोरियम है, हेल्थ सेंटर है, डायग्नोस्टिक सेंटर है और वहां पर डायलिसिस का सेंटर भी है। 50 करोड़ रुपए में इस्लामिक सेंटर बन रहा है और उसके पैसे हुकूमत दे रही है। 50 करोड़ में बनेगा। अरे इस्लामिक सेंटर तो छोड़ो, उर्दू भवन नहीं बना महाराष्ट्र मुंबई में, और इंशाअल्लाह मराठी भवन के साथ साथ मजलिस आएगी तो इंशाअल्लाह ताला मदनपुरे में हम उर्दू भवन भी बनाएंगे, क्योंकि मदनपुरे में उर्दू शोरा बैठते थे। हम ये काम भी करेंगे। अरे अज़्म होना है, हिम्मत होना है। अरे हमने काम किया। अब आने से पहले 15 दिन पहले 375 एकड़ जमीन मौकूफा वक्फ की हुकूमत के पास थी। असेंबली में लड़कर मैं हासिल करने में कामयाब हुआ हूं और 1 एकड़ की कीमत 25 करोड़ रुपया है।
375 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को आएगी और उस जमीन के जरिए हम मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी, माशी पसमानदगी, स्किल डेवलपमेंट और बहुत से खवातीन के ट्रेनिंग के प्रोग्राम के मराकज कायम करने का इरादा रखते हैं। 50 एकड़ जमीन मुस्लिम मैयतों की तदफीन के लिए पुराने शहर में हमने हासिल किया। यतीम खाना बनाने के लिए अनीसुल गुरबा के नाम से 40 करोड़ रुपया हुकूमत दे रही है उस यतीम खाने को बनाने के लिए, जहां यतीम बच्चों के रहने का इंतजाम है, तालीम का इंतजाम है, लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है, बड़ा किचन है, कमर्शियल एक्टिविटी और कमर्शियल सेंटर लगा हुआ है। महाना 25 लाख रुपया उस यतीम खाने को आएगा। हुकूमत आज बना दे, कल किसकी हुकूमत आएगी नहीं मालूम, देगी या नहीं देगी नहीं मालूम, लेकिन किसी की मोहताजी नहीं, कोई दे या न दे, वो यतीम खाना, वो मदरसा अपने किराए से खुद चल जाएगा। हमने ये काम किया। क्या ऐसा कुछ काम यहां हुआ? क्या कांग्रेसी एनसीपी वालों ने किया? अभी नहीं। अरे हम यहां क्यों आए हैं? ये कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी आपके हक को हासिल करने में नाकाम हो गए, इस वास्ते हम आए हैं। मुझे आपने जगह दी है और मैं आज मुखातिब हूं तो आप सुन रहे हैं। अगर ये काम करते होते तो क्या मुझे जगह मिलती? क्या आप मुझे सुनने आते? ये नाकाम हुए, इसलिए तो मैं आया। अगर कामयाब होते तो क्या मुझे जगह मिलती? हैदराबाद में क्या कोई आता है? या आ सकता है? हमारी गुंडागर्दी नहीं भाई, हमारा काम किसी को आने नहीं देगा, हमारी खिदमत किसी को आने नहीं देगी, हमारी आवाम में जो मोहब्बत है वो किसी को आने नहीं देगी। ऐसा काम करना। फाते वो नहीं होता जो इलेक्शन जीत जाए। वारिस पठान साहब, मैं आपसे भी कहूंगा, इलेक्शन जीत के फतेह हो गए ना समझो, हकीकी फाते वो है जो दिलों को फतेह कर ले। और अकबरुद्दीन ओवैसी दिलों को फतेह करने आया है। और आज ये मजमा, ये मोहब्बत इस बात की अलामत है कि आपको मुझसे उम्मीद है, आपको मुझ पे भरोसा है और एक आस जुड़ गई है आपकी मुझसे। मगर मैं कहना चाहता हूं, मैं फर्द वाहिद, फर्द तन्हा कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आपका इत्तेहाद, आपकी दुआ, आपका एतमाद, आपका भरोसा, आपका जोश, आपका जज्बा मेरे साथ नहीं मिलता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे हूं, आप मुझसे हैं और हम सब मिल जाए तो इस शहर के मुकद्दर के मालिक हम होंगे। बेशक हम बादशाह नहीं, हम बादशाह नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वोटों की इतनी ताकत है कि अगर हमारे सपों में इत्तेहाद हो जाए तो दिल्ली के तख्त पर हमारी मर्जी के बगैर कोई नहीं बैठ सकता। हम जिसको चाहे बिठा सकते हैं, जिसको चाहे तख्ते पे औंधा लिटा सकते हैं। समझो इस बात को, खुदारा इस बात को समझो, अपनी ताकत को समझो। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ जज्बाती नारे या तकारीर नहीं बल्कि अमल करती है, अमली तौर पे काम करने के लिए आई है। आज आप खुद बताइए कि आज क्या हो रहा है हमारे साथ, कैसी नाइंसाफियां हो रही हैं कि आज 2014
पार्लिमानी इंतखाबात से पहले बीजेपी इंतखाबात में आई, आने से पहले आज के दौर के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान करती है। तो नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान क्यों हुआ? मैं आज से 2 बरस पहले भी मुंबई शहर में मुखातिब करते हुए यही बात कहता था कि नरेंद्र मोदी में क्या काबिलियत है, क्या सलाहियत है, क्या ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी है, क्या इंग्लिश लिटरेचर का माहिर है, क्या संस्कृत लिटरेचर का माहिर है, क्या हिंदी का पंडित है, क्या फिलैंथ्रोपिस्ट है, क्या हिस्टोरियन है, क्या इकोनॉमिस्ट है? कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास अगर कुछ था जिसके बुनियाद से वो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बना, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2002 के गुजरात का कत्ले आम था। उससे हटके कुछ था? हमसे शिकायत कि हम ये कहते हैं, वो कहते हैं। असद साहब जब भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके भाई के ताल्लुक से क्या है, आपके भाई ऐसा बोले, आपके भाई वैसा बोले। अरे भाई का पूछना भाई से पूछ लो, भाई का जवाब भाई देगा। अरे मैं बहुत सुना, बहुत सहा, 70 बरस की तारीख में मेरी इज्जत लुटी, मेरी इस्मत लुटी, मेरे बस्तियां जले, मेरे खेत उजड़े, मेरे आशियाने जले, मेरे बच्चे यतीम हुए, मेरी बहनों की सुहागें उजड़ी, मेरी मां की कोख वीरान हुई। कभी गुजरात जला, कभी अहमदाबाद जला, कभी रोड किला जला, कभी मध्य प्रदेश जला, कभी औरंगाबाद जला, कभी उस्मानाबाद जला, कभी अजमेर जला, तो कभी फिरोजाबाद जला, कभी फैजाबाद जला, तो कभी अजमेर जला, कभी आगरा जला, तो कभी अयोध्या जला। अरे हम जले ही नहीं। हाशमपुरा मलियाबाद हुआ, गुजरात हुआ, मुंबई हुआ, बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। उस शहादत के बाद सरों और सीनों पे गोलियां मिली, ताड़ा मिला, जेलों में बच्चे गए। उसके बाद भी फिसादात का सिलसिला जारी रहा। कभी मुजफ्फरनगर मिला, तो कभी नरोड़ा पाटिया मिला, कभी गुलबर्ग सोसाइटी मिला, तो कभी एहसान जाफरी की मौत मिली, कभी इशरत जहां का इनकाउंटर मिला, तो कभी हमारे मुंहों में गोबर डाला गया, कभी अखलाक का मारा गया, तो कभी जाहिद वो नुमान को मारा गया, कभी राजस्थान में हमको मारा गया, तो कभी हरियाणा में 2 मुस्लिम लड़कियों की इज्जत को लूट कर उनका कत्ल कर दिया। अरे आज इतना जुल्म, इतना सितम करने के बाद भी क्या मैं आह भी नहीं कर सकता? क्या मेरी इज्जत के लुटने पर मैं रो भी नहीं सकता? क्या मेरे बच्चे के गले कटने पर क्या मैं आंसू भी नहीं बहा सकता? क्या मेरे अल्लाह के घर की शहादत पर मैं मातम भी नहीं कर सकता? तो बताओ मैं करूं तो फिर क्या करूं? अरे आज ये अल्फाज, ये गुस्सा, ये आग अकबर अवैसी की नहीं है, ये आग मेरे हर भाई की है, हर बहन की है। वो जो नहीं बोल सकता वो मुझसे बोलने लगा रहा है। क्या ये आपकी तड़प नहीं जो मेरी जबान से अदा होती है? क्या ये आपके दिलों की आग नहीं जो मेरे हलक से निकलती है? मैं पूछना चाहता हूं, जवाब दो मेरे भाई। क्या हम खामोश बैठ जाएं? 70 बरस से तुम बोलते रहे, एक मर्तबा हम बोले
تو اتنا برا دکھا, اتنی تکلیف. ارے ہم نے کہا اور کہہ کر بتا دیا کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہندوستان کا مسلمان گونگا ہے. ارے ہم گونگے نہیں ہیں, ہمارے حلق میں بھی زبان ہے. 70 برس تم بولتے رہے, ہم سنتے رہے, اب ہم بولیں گے, تم کو سننا پڑے گا. اور ہم جب بولتے ہیں ان کو برا دکھتا ہے. مظفر نگر کا فساد 2013 میں ہوا, کیا ہم بھول گئے؟ مجھے یاد ہے وہ گاؤں کے پرمکھ, وہ گاؤں کا بڑا, اس کے گھر میں میری بچی, میری بہن مدد کے لیے جاتی ہے تو وہ گاؤں کا پرمکھ تبلا اور باجا لے کر بجاتا ہے اور اپنی نظروں کے سامنے اس کی عزت, اس کی عصمت کو لٹاتا ہے. کھیتوں میں بھگایا گیا, میری ماں بہن کی عصمت کو لوٹا گیا, میرے گھروں کو جلایا گیا, میری عصمت کو لوٹا. باپ کے سامنے بیٹی کی آبرو کو لوٹ دیا, شوہر کے سامنے بیوی کی عصمت کو لوٹ دیا, بیٹے کے سامنے ماں کی عصمت کو لوٹ لیا درندوں نے. اور آج تک بھی انصاف نہیں ملا. فاسٹ ٹریک کورٹ بنائے سماجوادی حکمرانوں نے, چارج شیٹ آج تک نہیں ڈالے. کیس بک ہوا 6000 لوگوں پہ, اب صرف 400 500 5100 چلر فسادات ہوئے اتر پردیش میں 5 برس میں. ارے آپ بتائیے, کیا ہم آواز نہیں اٹھانا؟ ارے بی جے پی کے خلاف بولتے ہیں تو ہم دیش دروہ ہو جاتے ہیں, اینٹی نیشنل ہو جاتے ہیں. کانگریس کے خلاف بولے, این سی پی کے خلاف, سماجوادی کے خلاف بولے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں, ان کے ایما پہ آئے ہیں. سیکولرزم کا سرٹیفکیٹ گاندھی, پوار, ملائم, لالو, بنرجی دیں گے تو دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ مودی, اڈوانی, موہن بھاگوت, بی جے پی, آر ایس ایس دے گی. نہ ان سے لیں گے سرٹیفکیٹ, نہ ان سے لیں گے. یہ ملک میں ہم صرف ہندوستان کی آزادی کے بعد سے نہیں ہے, اس ملک میں ہم ہزاروں برس سے رہتے آئے ہیں. جن کو جانا تھا چلے گئے, جن کو رکنا تھا رک گئے. اس لیے رکے کیونکہ یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے, ہمارا رہے گا. یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہم سے بولتے چلے جاؤ, چلے جاؤ, نہیں جانے والے. ہمارے آبا و اجداد کے مدفن یہاں ہے اور ہم بھی یہاں دفن ہوں گے. یہ ملک کی 4 گز زمین میں ہی ہم دفن ہوں گے اور اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. نہ ہم خواجہ اجمیری کو چھوڑیں گے, نہ ہی ہم ہمارے آبا و اجداد کے نشانیوں کو چھوڑیں گے. ارے ہم نے اس ملک کو کیا دیا؟ ارے تم نے کیا دیا میں پوچھتا ہوں. ارے ہم نے دیا. دنیا ہندوستان کو آتی ہے تو میری اسلاف کی یادگار تاج کی خوبصورتی کو دیکھنے آتی ہے. دنیا آتی ہے تو قطب مینار کی بلندی کو دیکھنے آتی ہے, چار مینار کو دیکھنے آتی ہے, جامع مسجد, مکہ مسجد کو دیکھنے آتی ہے. ہندوستان کا وزیر اعظم میرے ملک, میرے اور آپ کے ملک ہندوستان کا پرچم جس قلعے پہ لہراتے ہیں وہ لال قلعہ بھی میرے ہی آبا و اجداد نے بنایا ہے. آپ کو
किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। मरना तो सबको है, कोई आगे मरेगा तो कोई पीछे मरेगा, मौत तो बरख है। लेकिन याद रखो, दुनिया उसी से डरती है जो दुनिया को डराना जानता है, और दुनिया उसी को डराती है जो दुनिया से डरता है। हम किसी से डरने या घबराने वालों में से नहीं है। अपना घर, अपना दार छोड़कर आए हैं तो किसके लिए आए हैं? अपनी जात के लिए नहीं, अपनी आन, अपनी बान, अपनी शान के लिए नहीं, बल्कि आपकी अजमत के लिए, आपके व्यवहार के लिए, आपके हक के लिए, आपकी ताकत के लिए, आपके नाइंसाफी पर आवाज उठाने के लिए आए। मैं आपको याद दिलाऊं, वारिस ने कुछ काम किया या नहीं किया कोई बात नहीं, मगर एक काम तो अच्छा किया। ऐवान असम्बली में सब लपट गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्द मुजाहिद ने वो नारा नहीं लगाया जिससे हमारा ईमान कमजोर होता। फखर है इस पर, नाज है इस पर, तो आपको भी नाज है ना मजलिस और इस पर। मुझे मगर शिकायत है अबू आसिम से, अमीन पटेल से, आरिफ नसीम खान से और असलम शेख से। पार्टियां कुछ भी होने दो, तुम्हारा भाई तो था ना, ये है ना। अफसोस तुमने इख्तिदार के लिए थोड़ी सी दौलत की चाह में, खौफ में बीजेपी और सेना का साथ दिया, मगर अपने कलमगो भाई का साथ नहीं दिया। लानत है तुम पर। लेकिन वारिस, मैं आपसे कहूंगा, अगर ऐसा वक्त आ जाए इन पर, तो तुम उन जैसा नहीं करना, तुम अपनी जान की बाजी लगा देना ईमान की हिफाजत के लिए, चाहे वो क्यों ना हो। जमातें तो आएंगी जाएंगी, अरे ये है वक़ार कौम का, इस वक़ार को जिंदा रखना होगा। हिंदुस्तान घबरा रहा था, डरा हुआ था, लेकिन याकूब मेमन की फांसी पर भी बोलने वाले सबसे पहले अगर कोई थे तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी। क्या थी या नहीं? क्या हमने हक अदा किया या नहीं किया आपके वोट का? पूरा हिंदुस्तान उठा हमारे बाद। अब आज भी मैं कह रहा हूं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत के लिए एनआईए एनओसी डालती है हाईकोर्ट में। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर इल्जाम क्या? मोटरसाइकिल उसके नाम पे बम धमाका हुआ मालेगांव में, उस मोटरसाइकिल पर, लेकिन उसको जमानत के लिए एनआईए बोल रही है। अकबर ओवैसी सवाल कर रहा है एनआईए से, बीजेपी से, सेना से, मोदी से, फडणवीस से, अगर प्रज्ञा ठाकुर को जमानत, तो रुबीना मेमन को भी जमानत होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रुबीना मेमन के नाम पर भी गाड़ी थी, ओमनी थी। अरे आज हम ये कहते हैं तो इनको बुरा दिखता। गोधरा के कातिलों को सजाए मौत की सजा हुई, गोधरा के कातिलों को फांसी की सजा हुई, लेकिन आप बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि नरोडा पाडिया, गुलबर्ग और सरदारपुरे के कत्ल पर फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई?
یہ میرا سوال ہے. آج ہم یہ سوال کرتے ہیں تو ان کو برا دکھتا ہے. ارے آج ہم اتنی تکلیف کے بعد بھی اس ملک کے وفادار ہیں. ہم ملک کے غدار نہیں ہیں. یہ ملک ہمارا ہے. آج آپ بتائیے کہ نریندر مودی کی حکومت آئی تو کیا کیا؟ 15 لاکھ آئے, ایک اور نوکریاں ملی, بے روزگاری دور ہوئی. 15 لاکھ تو چھوڑو, ہمارا پیسہ ہم اکاؤنٹ سے نہیں نکال سکے, 15,000 نہیں نکال سکے. ہر روز نیا آرڈر, ہر روز نیا. پہلے بولے بلیک منی کہاں ہے, اس کے بعد بولے فیک نوٹ کہاں ہے, پھر بولے ٹیررزم. ٹیررزم کتنا ہوا؟ اوری کا, ناگوڑا کا اٹیک ہوا, کتنے سیز فائر وائلیشن ہوئے؟ 1400 سیز فائر وائلیشن. کتنے سپاہی مرے؟ 130 سپاہی مر گئے. اور ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف کے گلے مل رہے ہیں, نواز شریف کی نواسی کے شادی میں شریک ہو رہے ہیں. وہ تحفہ بھیج رہے ہیں تو یہ تحفہ بھیج رہے ہیں. اور ہمارے ملک کا بہادر سپاہی سرحد پہ شہید ہو رہا ہے. کھانے کو تک برابر نہیں دے رہے, کھانا تک برابر نہیں سپاہیوں کو. اے مودی, اگر تم اور تمہاری حکومت ہمارے بہادر سپاہیوں کو کھانا نہیں دے سکتی تو بول دو, ہم مسلمان اپنے گھر میں ایک وقت کا چولہا نہیں جلائیں گے, اپنے سپاہیوں کو اپنے گھر کا کھانا دے دیں گے. دے دیں گے نا, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. اور یہ کیا صرف باتیں؟ تھوڑے دن پہلے پورے ہندوستان کے ہاتھ میں جھاڑو کا کٹا دے دیے, سوچھ بھارت سوچھ بھارت. پورا ہندوستان جھاڑو کے کٹے میں ہے. شوچالے بولے, کتنے شوچالے بنے؟ کتنے بنے؟ دیوالے بول رہے, نہ شوچالے بنے نہ دیوالے بنے. اور پھر بولتے ہیں میں تو فقیر ہوں, چھولا ڈالوں گا چلا جاؤں گا, مجھے کوئی مار دیں گے. کون مارے گا؟ وزیر اعظم ہے کیا ہے, کیوں ماریں گے؟ غریب ہے, فقیر ہے, جھولا ڈالوں گا چلا جاؤں گا. ضرور 2019 میں یہ ہندوستان نریندر مودی کو واپس بھیجائے گا. اور مسٹر مودی, آپ جب جائیں گے نا تو خالی جھولا نہیں, چائے کی کیتلی, چائے کی پتی, چولہا میں دیتا ہوں وہ بھی لے کر جانا. بات کرے کہ کہتے کڑک چائے, نرم چائے, گرم چائے. ارے مسٹر مودی, آپ چائے والے تھے, اب وزیر اعظم ہیں. خدارا وزیر اعظم جیسے بات کرو. صرف دھوکہ, صرف دھوکہ. ڈی مانیٹائزیشن ہوا تو کتنا بڑا اداکار ہے دیکھو آپ, کہ اپنی ماں کو بینک کی قطار میں کھڑا دیا. نہ ماں کے ساتھ یہ سلوک, بیوی کے ساتھ یہ سلوک کہ بیوی کہاں ہے نہیں معلوم, پھر بچی بچاؤ بچی پڑھاؤ. ارے نریندر مودی, تیری جگہ اگر میں ہوتا تو اپنی ماں کو گھر پہ بٹھاتا, اگر لے جانا ضروری ہوتا تو اپنے کھانوں پہ اپنی ماں کو بٹھا کر لاتا, اس کو لین میں نہیں کھڑا. مگر یہ لوگ ایسے ہیں, اقتدار, صرف اقتدار. بڑے بولتے ہیں نا ہندو دھرم کی بات. ارے نریندر مودی صحیح ہندو ہے, پکا ہندو ہوتا اور ہندوستانی تہذیب کا چاہنے والا ہوتا تو شرون کمار کی طرح اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر لے جانا تھا. لیکن کیا ایسا کیا؟ ارے بھائی خدا را سمجھو, آج یہ لوگ صرف دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکے کے ذریعے ہمارا استعمال کر رہے ہیں, اور صرف ہم کو ووٹ بینک کی طرح استعمال کر رہے ہیں.
آج مجلس اتحاد المسلمین آئی ہے. اتحاد کے ساتھ ساتھ مدن پورہ میں اور بائکلہ میں جتنے سکولز بند ہیں ان کو دوبارہ کھولیں گے, اور انشاءاللہ اگر حکومت دیتی ہے تو 1-2 سکول ہم لے لیں گے اور ہم چلائیں گے غریب بچوں کے فری تعلیم کے لیے. مگر آپ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے. آج اگر آپ متحد رہیں گے تو انشاءاللہ ممبئی کی بلدیہ پہ سینا کا جھنڈا ہے, بی جے پی کا ہے, کانگریس این سی پی کا ہے. انشاءاللہ تعالی 21 تاریخ کے بعد ہرا جھنڈا بھی لہرائے گا. لہرائے گا نا؟ ضرور لہرانا میرے بھائی. یاد رکھو اکبر الدین اویسی مدن پورے میں آیا ہے, مدن پورے سے والوں سے مانگ رہا ہے. میں مدن پورے سے والوں سے نہیں کیونکہ لال باغ والوں سے مانگوں گا. میں تمہارا ہوں, تم میرے ہو, میرا تم پر حق ہے, تمہارا مجھ پر حق ہے. اسی حق کے ناطے تمہارے پاس آیا ہے. یہ تمہارا بھائی, اس کی عزت تمہاری عزت, تمہاری عزت میری عزت, اور ہم سب کی عزت مجلس اتحاد المسلمین. اس جماعت کو کامیاب کریں گے نا, اپنا ایک ووٹ دیں گے نا, اور بتا دینا اب ہم اڑ گئے ہیں, بیدار ہو گئے ہیں. اور بھی کل جلسہ ہے ڈوگری چارنل پر ہے, انشاءاللہ باقی تقریر وہاں کریں گے. ابھی بہت بچانا ہے, چائے والا, یہ والا, وہ والا بہت ہے, سننا ہے نا. تو انشاءاللہ کل ملیں گے, مگر ایک زوردار نعرہ ہوگا نا. نعرہ یہاں سے بینڈرا ماتو شری تک